Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar, lecturer in biology, Government Senior Secondary School, Champo, District Hamirpur. Welcome you all once again in 10 plus 2 biology class. As the screen in front of you, there is a question mark after two words. The words are genetic material. Why the question mark is there, I will tell you now. Beta, genetic material, we have studied in the earlier videos. For the more videos regarding the genetic material, you can see the previous videos on my YouTube channel, and these are there. The question is that what is genetic material? You can go to the previous videos. See, there are four kind of materials are there. There are four kind of biomolecules are there in our body. One are carbohydrate, one are lipids, one are proteins, one are nucleic acid. ये चार तरह की जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनसे सेल बना है और हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है. Then which one among them is the genetic material? We have not studied it yet. So the today's discussion concept is search for the genetic material. कैसे पता चला कि कौन सा मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो लिपिड्स है, क्या वो प्रोटीन्स है, क्या वो न्यूक्लिक एसिड्स है? To get the answer of these questions, these were also in the mind of earlier scientists. Then the scientists, they start working. First one to do an experiment on this concept, to search the genetic material, it was Frederick Griffith. आपके सामने पिक्चर है, the Frederick Griffith in 1928 1928 में he did an experiment and observed something. And what is the observation? Let us discuss that experiment done by the Frederick Griffith. Frederick Griffith, in the 1928, he was working on Streptococcus pneumoniae, the bacteria Streptococcus pneumoniae. Diplococcus pneumoniae is the another name. It is the bacteria which cause pneumonia disease of the lungs. तो वो उसको स्टडी कर रहे थे, and what he observed that there is an occurrence of an phenomena. वहां पे एक फिनोमिना हुआ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसके बेस पे he was the man who moved very close to the search of genetic material. वो लगभग नजदीक आ चुके थे. मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe के बारे में बताना चाहूंगा. It occurs, this bacteria occur in two forms. One is smooth or virulent or S strain. There are two strains. One is smooth, virulent or S strain, and another one is rough, non-virulent and R strain. Smooth strain को smooth कहा क्यों गया? Why it is smooth? Basically, you know the structure of prokaryotic cell. You have studied in the +1. Some of the bacteria have their outer structure as a capsule, prokaryotic cell, and it is made up of mucous polysaccharides, and it is slimy. And these bacteria, they have the mucous polysaccharide coat or capsule, and they form the colonies which are shiny. From the shiny, the word S came, the S strain. S strain. While the another strain which is rough or non-virulent or R strain, it is without capsule. Its colonies are not shiny, so they form the rough colonies. From the rough word, R strain word is there. तो दो तरह की colonies है बेटा. One is smooth, one is rough. Smooth is also called S strain,
due to shiny nature of the colonies, and R strain due to the rough nature or the rough appearance basically of the colonies. Smooth strain is also called virulent because it is the strain of the bacteria which cause disease, and the rough is not able to cause disease, so it is called non-virulent strain. तो दो तरह की स्ट्रेन्स आपके साथ डिस्कस की गई, वन इज द रफ, वन इज द स्मूथ, स्मूथ एंड रफ. ओके, इट इज द आर स्ट्रेन एंड द स्मूथ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. What was the experiment done by the Griffith? It is a very simple experiment, my dear friends. बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया. This is there in front of you. It is the Griffith experiment. कुछ नहीं किया ग्रिफ्थ ने, माइस लिए and culture of the bacteria. Which one bacteria? As I have discussed earlier, it is Streptococcus pneumoniae, जो निमोनिया को कॉज करता है. उस बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया, दोनों स्ट्रेन्स का, आर का भी और एस का भी, एस का भी और आर का भी, स्मूथ का भी और रफ का भी. और देखिए बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन बहुत बड़े थे जो हम देखेंगे, जिसके कारण हम जान पाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, और उसके काफी नजदीक हम पहुंच चुके थे. सी हियर, इट इज द रफ स्ट्रेन which is, in the first line you will find the rough strain is the non-virulent one. He took these bacteria and passed them into the mouse. Rough strain, non-virulent, जब इनको माइस के अंदर डाला गया, इंजेक्ट किया गया, then what he found, the mouse are live, वो जिंदा थे. और उनके अंदर एक बात और नोट करें, the bacteria present in their blood, it is R type. Then injected the smooth strain of the Streptococcus pneumoniae or Diplococcus pneumoniae and injected them into the mice. He found that the mice, they were died. They were died of pneumonia. क्योंकि वो तो निमोनिया करते हैं, वो मर चुके थे. और उनके ब्लड में, जो माइस डेड हुए, उनके ब्लड में एस टाइप का जो था, वो स्मूथ टाइप का जो बैक्टीरिया था, वो पाया गया. तो पहले मैं नॉन विरुलेंट रफ दिया, उसमें माइस जिंदा थे, पर उनमें बैक्टीरिया आर टाइप था. जब एस दिया गया ब्लड में, नेचुरली एससी दिया तो एससी होगा, पर वो डाइड हो गए थे निमोनिया के कारण. अगले में क्या देखिए, ही गिव हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन. हीट किल्ड, उन्होंने बैक्टीरिया को हीट किल किया. कौन सा? एस, स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया को, और इंजेक्टेड इनटू द माइस. व्हाट ही फाउंड? The mouse, they were lived, the mice were lived. वो जिंदा है, वो जिंदा थे उस टाइम. Then उन्होंने देखा कि यार, जब मैंने पहले स्मूथ स्ट्रेन को दिया तो वो मर गए, जब मैंने हीट किल करके दिया तो वो जिंदा थे. अब इन्होंने क्या किया? He injected the mixture of rough strain and heat killed smooth strain. Heat killed smooth strain और rough strain, उन दोनों को, हीट किल्ड एस और जो आपका रफ स्ट्रेन है, इन दोनों को इंजेक्ट कर दिया. देन ही फाउंड सम ऑफ द माइसेस दे विल डाई. द माइसेस दे यूजुअली डाई, सम ऑफ देम विल डाई एंड सम विल नॉट, और यूजुअली दे विल डाई. द माइसेस दे गॉट डाइड. ही वाज वेरी सरप्राइज्ड एट दैट टाइम कि हुआ क्या, क्यों मरे. इन्होंने कहा, अब यहां पे देखिए साइंटिफिक अप्रोच. ग्रिफ्थ ने यह कंक्लूड किया कि देयर इज समथिंग which convert these R strain of the bacteria into the smooth strain. इन्होंने कहा कि जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरियाज हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ है जो दूसरे के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देता है, दूसरे बैक्टीरिया के, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, और उसको बदल देता है अपनी ही तरह में. और इसे ही नाम दिया गया, क्या बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसे कहा गया. एंड व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग. ट्रांसफॉर्मेशन इज द कन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल
of one type of bacteria or organism. Why? Taking genes from outside as from the dead relative, as we have seen in the Griffith experiment. जैसा हमने ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो इनके डेड रिलेटिव्स हैं, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन हैं, उनमें से कुछ एक जीन्स लिए गए, कुछ एक लिया गया मटेरियल, अभी तक जीन बोलना ज्यादा उचित नहीं है, कुछ मटेरियल लिया गया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया को स्मूथ स्ट्रेन में. यही था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, यही था ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इट वाज नॉट वेरी क्लियर बाय द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट दैट विच वन इज द मटेरियल. मैंने अर्लियर आपसे क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या लिपिड्स, क्या प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड, कौन से डीएनए आरएनए, कौन से इनमें से मटेरियल हैं जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं. तो यहां से भी अभी तक बड़ा क्लियर नहीं था. व्हाट एट द टाइम ऑफ ग्रिफ्थ इट वाज बिलीव्ड दैट दीज आर द प्रोटीन्स व्हिच आर द जेनेटिक मटेरियल. यह मानना था कि प्रोटीन्स होती हैं जो जेनेटिक मटेरियल होती हैं, और काफी हद तक आंसर मिल चुका था कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है. अब काफी नजदीक सर्च जा चुकी थी. आफ्टर ग्रिफ्थ 3 साइंटिस्ट, these are in front of you on the screen, O.T. Avery, then Maclean McCarthy, then Colin M. MacLeod. O.T. Avery, McCarthy and MacLeod. These are the 3 scientists. These were the 3 scientists. They took the further studies ahead of the Griffith experiment. What they do? And they give the biochemical characterization of the transforming principle. इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो है जो ग्रिफ्थ इफेक्ट में, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, पर वो कौन सा बायोकेमिकल है उसका पता करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एंड द एक्सपेरिमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स. छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया. इन्होंने कल्चर मीडियम तैयार किया आर स्ट्रेन का, और उसके अंदर रफ कॉलोनीज को ग्रो की. कल्चर मीडियम में रफ कॉलोनीज ग्रो की गई, और देयर वर 4 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स जिनमें रफ कॉलोनीज ग्रो की गई कल्चर में. इन द फर्स्ट दे पुट carbohydrates of S type. In the second they put proteins of the S type. In third they put the DNA of the S type and DNAs. In the fourth they put the culture medium and DNA of S type. जब उन्होंने कल्चर मीडियम आर टाइप में, जहां पे आर टाइप के बैक्टीरिया थे, उनमें कार्बोहाइड्रेट डाला, उन्होंने देखा कि डालने के बावजूद, इनोकुलेट करने के बावजूद, दे इनोकुलेट दैट टू देम, उस इनोकुलेशन के बाद जब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट डाल दिया इसके, तो वहां पे कोई चेंज नहीं था. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है. इट मीन वो ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल या बायोकेमिकल है ही नहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है. जब प्रोटीन्स को डाला गया, मैंने जैसे कहा कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट तक ये माना जाता था कि प्रोटीन्स ही होती हैं, पर O.T. Avery, MacLeod एंड मैकार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि दिस वर नॉट द प्रोटीन्स माय डियर फ्रेंड्स, दिस वर नॉट द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स भी कोई बदलाव नहीं ला पाई, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एबल नहीं थी. Then he put the DNAs of S type and DNA of S type and DNAs are the enzyme which digest the DNA. तो जब DNAs और DNA को डाला गया तो देखा गया कि there were no change. Well, कल्चर मीडियम में DNA of S type डाली गई तो they found that there is the formation of some of the S type of the strain of the bacteria are also there. Some are transformed into S type. यहाँ आप एक बार देखें ब्लैक बोर्ड पे, O.T. Avery, McCarthy and MacLeod. They took 4 test tubes. कल्चर मीडियम तैयार किया गया R टाइप का. फिर पहले में कार्बोहाइड्रेट ऑफ S टाइप डाले गए, दूसरे में प्रोटीन S टाइप की डाली गई, तीसरे में DNA ऑफ S टाइप और DNAs डाला गया एंजाइम, और फोर्थ में DNA ऑफ S टाइप डाला गया. पहले में जब कार्बोहाइड्रेट देखे नो चेंज वर देयर, जब प्रोटीन S टाइप की डाली आर कल्चर में तो भी कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी.
जब उसमें डीएनए और डीएनए डाला, क्योंकि डीएनए ने क्या किया बेटा, डीएनए को ही डाइजेस्ट कर दिया, तो कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। और यहां पे देखा गया when the DNA of the S type is inoculated into the R culture, then some of the R bacteria transformed into the S bacteria. ये था ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए के अंदर वो क्षमता है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो डीएनए इज द मोस्ट प्रोबेबल जेनेटिक मटेरियल, और अब एस्टेब्लिश हो चुका था इस एक्सपेरिमेंट से ओटी एवरी, मैकार्टी एंड मैकलिऑड, दे गिव द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एंड द केमिकल वाज एंड इज, उस टाइम जब प्रूव किया और अब है, दैट इज डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज प्रूव्ड बाय द बायोकेमिकल by the O.T. Avery, McCarthy and the MacLeod. What? The experiment was done basically by the Griffith and biochemical characterization by the three scientists, O.T. Avery, MacLeod and McCarthy. What the unequivocal proof of the DNA to be the genetic material? It was given by the two scientists. One is the Martha Chase and Alfred Hersey on the screen. Martha Chase and the Alfred Hersey. They did a very simple experiment again. Their experiment was based on bacteriophage. Bacteriophage are nothing. These are the viruses which can infect the bacteria. ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वन ऑफ द T2 बैक्टीरियोफेज इज देयर। आप इसमें देखें, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, देयर इज अ हेड, देयर इज अ कवर एंड देयर इज अ टेल। हेड में आप देखें बेटा, देयर इज अ कैप्सिड व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, याद कीजिएगा, देयर इज अ कैप्सिड व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड देयर इज अ कोर व्हिच इज हैविंग द डीएनए। बाहर एक कैप्सिड जो प्रोटीनियस होता है, वो एक कवर उनके हेड के ऊपर होता है, प्रोटीनियस कोट है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल है। क्या करते हैं बैक्टीरियोफेज? व्हाट इज देयर लाइफ साइकिल? लेट अस सी। इट इज अ 2 dimensional structure, इट इज अ 3 dimensional structure। सी और द लाइफ साइकिल ऑफ द T2 बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यूजुअली क्या करते हैं बेटा? दे हैव द जेनेटिक मटेरियल एंड द कैप्सिड, जैसे मैंने बोला। देयर इज अ see, there is a head, there is a corner and there is a tail. Tail have the long tail fibers and the base plate. This base plate and long tail fiber, they help the T2 bacteriophage to attach with the bacteria. Bacteria के साथ जुड़ने में बहुत हेल्प करती है। कैसे? See the bacteriophages, they go and attach with their tail fibers and tail region and the plate to the bacteria, and they put or inoculate their DNA into the what? They inoculate their DNA into the bacteria, and it use the machinery of the bacteria and multiply there and make a multiple copies. More of the viruses are there now in the bacteria, so it will get burst open. This is called the lysis, and the phase, the new phases, the new viruses, they are ready to infect to the more bacteria, and the similar life cycle will be repeated again and again. ये जो वायरस की लाइफ साइकिल मैं बता रहा हूं, वी आर लिविंग इन द कोरोना वायरस, ऐसी ही लाइफ साइकिल इनकी होती है। सी क्या किया था एक्सपेरिमेंट? इट वाज आल्सो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, बट द कंक्लूजन आर वेरी वेरी ग्रेट। सी हियर, कुछ नहीं किया गया बेटा। आपको पता है प्रोटीन्स हैव द सल्फर, डीएनए हैव द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डीएनए में होता है और प्रोटीन्स में सल्फर हुआ करता है। these two scientists, they took the radioactive sulfur and grow the bacteriophages in the medium having the radioactive sulfur. Some of the viruses in the one culture having the sulfur, radioactive sulfur S35, and in the another culture which is having the radioactive phosphorus 32,
they grew some of the another viruses, bacteriophages, T2 bacteriophage. कुछ बैक्टीरियोफेज को ऐसे कल्चर में ग्रो किया गया बेटा जो रेडियोएक्टिव S35 जिन कल्चर में था, और कुछ एक को जहां पे फॉस्फोरस 32 था, ऐसे कल्चर में ग्रो किया गया. देन दे वर अलाउड टू इन्फेक्ट द व्हाट बैक्टीरिया. क्यों मैंने बोला बैक्टीरिया को कर सकते हैं, वो वहां पे उनको छोड़ा गया कि वो इन्फेक्ट करें. वो ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनके अंदर ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनको कहाँ रखा गया, सल्फर वाले में कल्चर में ग्रो किया गया. नेचुरली सल्फर विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटीन्स. मैंने बोला कि वो उसको मशीनरी को यूज करेंगे बैक्टीरिया कल्चर को, और जो सल्फर है वो उनकी प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जबकि फॉस्फोरस उनके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. तो नेचुरली होगा. देन दे आर अलाउड टू इन्फेक्ट द अदर बैक्टीरियाज. देन ब्लेंडिंग विल बी डन विद द ब्लेंडर. मिक्सी जिसे बोलते हैं ना, मिक्सर ग्राइंडर, उसके अंदर ब्लेंडिंग की गया. देन द सेंट्रीफ्यूज किया गया. जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो एक जो है वो सुपरनेटेंट बन जाता है, जो ऊपर क्लियर फ्लूइड है. बेटा मैं आपको बताऊं व्हाट इज सुपरनेटेंट. लेट्स सी हियर. सपोज दिस इज अ बीकर. ऐसे जो अपर लेयर बन जाएगा वो सुपरनेटेंट होगा, और ऐसे जो नीचे जो भी चीज रह जाता है वो बेस पे है ना. तो सुपरनेटेंट इज दिस TNT. सुपरनेटेंट इज दिस. तो बेसिकली क्या देखा गया सुपरनेटेंट में, और यहां पे वायरसेस जो थे वो सेटल हो चुके थे अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, वो नीचे थे. तो ये देखा गया कि जब उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो क्या पाया गया कि जिस कल्चर में जो हमने रेडियोएक्टिव सल्फर वाले जो हमने क्या किए थे, अभी समझाऊंगा सारा. जो रेडियोएक्टिव सल्फर वाले जो हमने कल्चर में जो ग्रो वायरसेस किए थे, और जिन्होंने उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और ग्रो किए और मल्टीप्लाई किए उनके अंदर, जब उनको हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो पाया कि जो रेडियो एक्टिविटी है दैट वाज फाउंड इन द, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए. आप रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन द सुपरनेटेंट in case of what beta S35 type of the viruses. अब ये क्यों हुआ सुपरनेटेंट में मैं बताता हूं आपको. What happened basically now? See here. जो वायरस जब हमने उनको सेंट्रीफ्यूज किया, the DNA was basically here in the bottom and the supernatant had the capsid at the tail. कैप्सिड प्लस टेल पार्ट वो अलग हो चुका था. जो उनका जेनेटिक मटेरियल था, इट इज डीएनए, इट वाज डीएनए, वो अलग था. कैप्सिड हैव द प्रोटीन, जैसे मैंने पहले बोला था. तो जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि सल्फर विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन्स, वो वहां पे कैप्सिड में थी, इसलिए वहां पे रेडियो एक्टिविटी था. और जब हमने जिन वायरसेस को कहां इनकॉर्पोरेट ग्रो किया था, ऐसे कल्चर में जहां पे फॉस्फोरस था, जब उनको हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो देखा कि उनके जो सुपरनेटेंट हैं देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी. इट वाज फाउंड इन दिस एंड अल्टीमेटली इन द T2 बैक्टीरियोफाज. तो जो बैक्टीरियोफाजेस हैं, यहां से भी पता लग रहा है कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इस डीएनए से जो वायरसेस जो T2 बैक्टीरियोफेज ग्रो हुए, देयर डीएनए आल्सो हैव द रेडियो एक्टिविटी. और सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, पर डीएनए के अंदर थी. और फॉस्फोरस विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए, और रेडियो एक्टिविटी डीएनए में आई थी, और डीएनए में लगातार नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द T2 बैक्टीरियोफेज वो जा रही थी. सो विद दिस एक्सपेरिमेंट इट इज वेल क्लियर दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इज द मटेरियल which will got transmitted from one parent to another parent and give the characters. Now ये था कि कैसे पता लगा. तो दो एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट,
with the biochemical characterization by the O.T. Avery, McCarthy and MacLeod, and the Hershey and Chase experiment. You have to make the notes of these properties of genetic material. होता क्या है genetic material? Which one is the suitable material now? One character is it must be able to replicate. वो अपनी कॉपी तो बना सके. हमने देखा कि वो वायरसेस में एक से ज्यादा जब वायरसेस जब कर रहे थे. एक और बात मैं आपको बता दूं. The phenomena of conversion of the genetic material by the one viruses to the another virus जो हो रहा था इस केस में बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल डीएनए को वायरल डीएनए ने चेंज किया, इस फिनोमिना को ट्रांसडक्शन कहते हैं बेटा. जैसे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां पे इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं. दिस इज ट्रांसडक्शन. नाउ सी द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी रेप्लिकेट. वो अपनी कॉपी तो बना सके. It should be stable chemically as well as structurally. It should be mutable. इसमें mutation हो सके because mutation are the raw material for the evolution. तभी विकास हो सकता है. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. वो Mendelian character के रूप में अपने आप को express कर सकता हो. Then the genetic material now, it is the nucleic acid, well proved now. And both the DNA and RNA, they behave as the genetic material. We have studied them in earlier classes. Go to these videos on my YouTube channel also. And subscribe my YouTube channel also. Then, this is the structure of DNA. We have studied the double helical structure of DNA. This is RNA. RNA basically, they are of three types. Major type of RNA है वो तीन है. One is transfer RNA, ribosomal RNA, which is the most abundant RNA. ये ribosome formation में काम आती हैं. Then the messenger RNA. This is the structure of messenger RNA. Then ribosomal RNA, the most abundant RNA used in the formation of ribosomes. Then the transfer RNA is there. It is quite helpful in the translation. आप पढ़ेंगे इसको आगे. Now the genetic material. Which one genetic material is more better? Either the DNA or the RNA. The best genetic material, both are the genetic material. They both have the quality of mutation. They both can replicate. They both can mutate. They have the properties. So they are the genetic material. What the most stable genetic material is, or highly stable one is DNA, because it is not under the effect of heat. Heat can only separate the two strands of DNA like this. This is the DNA, suppose two strands, they will get separated by the heat. As soon as the heat is withdrawn, they will get attached again. Then DNA don't have the two OH, जो उसका 2-OH group है वो नहीं होता है, और it is present in the RNA, which is making it quite reactive. One more, it is double-stranded DNA. DNA of the thymine instead of uracil. Uracil is quite reactive, इसलिए RNA ज़्यादा reactive है और DNA कम, क्योंकि इसमें thymine होता है और इसमें uracil होता है. uracil के कारण RNA ज़्यादा reactive है और DNA ज़्यादा stable है. DNA is double helical, so जो इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्सपोज नहीं होते हैं लगातार. दे आर नॉट एक्सपोज्ड ऑल टाइम्स. while the RNA is single stranded, it's all the nucleotides they are exposed. आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं. This is DNA, this is RNA. DNA consists of 4 type of the nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine and thymine, while this is made up of adenine, guanine, cytosine and uracil. This is the RNA. So the most stable is the DNA. This is all about the today's topic, the search for the genetic material. You can visit my YouTube channel, subscribe it and press the bell icon for more videos. Thanks a lot.